we have organized 52 physical meetings, in different states with the theme Positive Media under the Positive India movement. 2 annual national programs on Republic Day and Independence Day each year are organized. And RGS Positive India movement belongs to 25 states. We have our branches in all 25 states, and we have the central coordinators in 25 states. That's a matter of very pride for us. राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर, ये हमने प्रोग्राम जो था 23 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस पर लॉन्च किया था। इसके बाद हम हर शहीदी दिवस को 23 मार्च को इस प्रोग्राम की बहुत ही उत्साह के साथ हम मनाते हैं। RGS Positive Media is releasing life and works of dozens of great men of India every week. RGS Positive speakers of different states send such videos for our YouTube channel, And Uday Kumar Manna appears on Facebook Live very frequently. Previously, we were doing it twice a week, Now and then he also appears on the RGS Vani, And the whole moment, is very vigorous, And we want that everyone in the country should think positively and contribute to the society. And with these words, I welcome our eminent speakers, and I hand over the mic to Professor Bijon Mishra to carry the program further, Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. दीपचंद जी, आप लोग जैसे सुने और उन्होंने जिस ढंग से संक्षेप में इंट्रोडक्शन दिया, पहले तो हमारा नमस्कार और प्रणाम टू द कंप्लीट RGS परिवार। हम लोग सब RGS परिवार से जुड़ गए हैं और हम आज ये कहना चाहेंगे आप लोग सबको कि जब हम जुड़े, मेरा केवल एक ही लक्ष्य था और एक ही ऑब्जेक्टिव था जब हम जुड़े कि कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं समाज में। और उदय मन्ना जी एक व्यक्ति मिले हमको जो इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो हमको एक मौका मिल गया उन लोगों तक ज्वाइन करने के लिए, उस परिवार के लोगों तक ज्वाइन करने के लिए जो पॉजिटिव मीडिया को लेकर, पॉजिटिव सोच को लेकर, पॉजिटिव मैसेजेस को लेकर समाज तक जाने लगे हैं। So all my friends, thank you very much for coming, taking your time to join us. I can see many of my friends, who have joined, including Professor Ramaiah from, again, as usual, from USA at this odd time. Professor, namaskar. Nice to have you with us. It is always a pleasure to see even people from USA getting interested in the work which we are doing. I must all. Yes, go ahead, Professor Ramaiah. Please go ahead. I said I want to thank you for this wonderful events that you are organizing. I'm very fortunate to be part of it, and I hope to be in the future as well. Thank you. Yes, we have already taken a decision that we will all work towards the cause of rare disease, which is being led by you, and we will continue to work with you and with your guidance to go to the logical end, which we want to reach in the benefit of the rare disease patients in the world and especially in India. Having said that, I have got eminent people, and before I can go ahead to conduct as a moderator, let me inform you all that I got a call from Mr. Habibullah ji, our chairperson of the Patient Safety Access, that he will be able to join us at around 11:45. So we will keep him towards the end in terms of hearing him. So the presidential address will be at around 11:45. हमारे सारे दोस्त जुड़ गए हैं, प्रकाश भाई from Gujarat, my most favorite, professor, Ravi Narayan Acharya ji. Namaskar, Ravi Narayan ji. He's a great personality. आप जब उनको सुनेंगे, वो आयुष
को लेकर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं एंड आगे ले जा रहे हैं। जैसे हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से इंडियन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर भी एक फोर फ्रंट में आए और उसको हम लोग आगे ले जा सके। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों से इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू लूज टाइम फ्रॉम आवर प्रोमिनेंट स्पीकर्स हु आर देयर। हम देख रहे हैं हमारे भाई किशन परमार जी यूपी से भी जुड़ गए हैं, हम उनको भी निमंत्रण करेंगे बोलने के लिए। हमारे कई दोस्त जुड़ गए हैं अब कई जगह से, ऑल ओवर इंडिया से। एंड आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट द स्पीकर्स if they can be bilingual as far as possible in Hindi and English, not only Hindi but speak also in English, because some of my friends who have joined us are not very conversant with the Hindi words, so they would like to listen in English also. So try your best to keep it bilingual, but कोई जरूरी नहीं है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, लेकिन जो संचार है जिसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, वो संचार संक्षेप में सब लोग तक पहुंचाना, ये हम लोग का काम है। और हम देख रहे हैं लोग नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़े हैं हमारे साथ, गुवाहाटी से कई लोग जुड़े हैं, ऑल ओवर इंडिया से। सो हम एक एक करके आप लोगों को उनके साथ अवगत कराएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और आप लोग आई एम श्योर विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, my mentor, my very good friend, जब आप लोग सबको मालूम है कि हम एक कदम नहीं लेते हैं जब तक हम प्रफुल्ल भाई से बात नहीं करते हैं। हमारे बीच में प्रफुल्ल डी सेठ जो बड़ौदा से हैं, बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, बहुत ही मतलब अनुभवी व्यक्ति हैं, और हम उनसे शुरू करेंगे आज का परिचर्चा। कैन आई रिक्वेस्ट माय ग्रेट फ्रेंड Prafull D. Seth, who is a renowned global pharmacist and a mentor for us in terms of taking us forward in our mission, including the topic which we are going to talk today. As you all know, we have published this magazine of the month of February on these bands which we are going to talk about, and हम लोग इसी पे आप लोगों को सबका भी व्यूज सुनेंगे, especially the ladies. दीपा जी आप सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज का आवाज सुनना। एंड आई वुड लाइक टू नाउ रिक्वेस्ट प्रफुल्ल भाई टू काइंडली गिव द इंट्रोडक्टरी एड्रेस एंड द वेलकम एड्रेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। प्रफुल्ल भाई। थैंक यू बिजॉन्दा। वंदे मातरम। आरजेएस परिवार के सब सदस्यों को, आप परिवार से जुड़ गए हैं, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। और सबसे पहले तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कोटि कोटि नमन। श्री उदय मन्ना जी, दीपक माथुर जी, बिजौंदा, हमारे हबीबुल्ला जी जो थोड़ा लेट आएंगे, डॉक्टर रविंद्र नारायण आचार्य जिनके साथ हमें पिछले 2 साल काम करने का अवसर मिला था जब हम लोग आयुष के बारे में डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। वेलकम प्रकाश रविंद्र भाई, प्रकाश भाई बोसानिया जी एंड फ्रेंड्स। जब ये पॉजिटिविटी की जब बात आई बिजौंदा, तो मुझे अपने डॉक्टर के अग्रवाल याद आ गए। आपको पता होगा कि जब हम कोविड से बहुत ही जूझ रहे थे और सबका मॉरल बिल्कुल डाउन हो चुका था, तो हम लोगों ने के अग्रवाल साहब को निमंत्रित किया था, और वो लेक्चर अभी भी मुझे याद है। आप प्लीज सबको ये लेक्चर जो उनका है, जो वीडियो, सबको एक बार फिर से प्लीज फॉरवर्ड इट to all the members who are present here. That was a lecture in positivity. So सुप्रभात। देखो हमारे पिछले जो सेशंस हुए उसमें जो 35 year of consumer movement in India से लेके हमारा बजट एक्सपेक्टेशंस एंड बजट में क्या हमें मिला, सिटीजन्स को क्या हुआ, उसके फायदे गैर नुकसान, ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया। तो हम एक तरह से कह सकते हैं
एक नया चैप्टर खुला है इस मूवमेंट में और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। नाउ ये जैसे पहले कहा गया एक रेगुलर फीचर बनने जा रहा है। और आज हम आपको एक और ऐसा एक सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में उसका टाइटल है आर यूजिंग बैंक्स ए सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। और अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या प्रभावी शासन का विकल्प प्रतिबंध ही है या हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको जैसे हमारे मैगजीन अवेयर कंज्यूमर में तो काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन सारा तो चर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं एक दो आपको उसका जो एग्जाम्पल है वो दूंगा। बड़ा दिलचस्प डिस्कशन होने की आशा है। सबसे पहले तो हम लोग को इंडिया में बैन करने का बहुत अच्छा लगता है। हम छोटी मोटी बातों को बैन चालू कर देते हैं, जहाँ पे हमने लगा कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर सॉन्ग हो, अगर मूवीज हो, और बुक्स हो, और फूड हो, ड्रिंक्स हो, और इवन एप्स, हमने काफी चीजें पर बैन लगाया हुआ है। सो ये जो नंबर ऑफ बैन्स जो हम लगा रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, वो भी आज की बात नहीं है, सालों की बात है। पिछले गवर्नमेंट आती है जाती है, चालू रहता है और बदल भी जाता है। लेकिन हमें सोचना है कि जो बैन जब हम लगाते हैं तो वो कंज्यूमर के चॉइस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो कंज्यूमर को अपना चॉइस होता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और जो क्वेश्चनेबल डिसीजंस जो होते हैं, जो अथॉरिटीज लेती है, जैसे अल्कोहल है, ईटिंग ऑफ मीट है, कभी कभी समाज में गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन जो बड़ा पिक्चर हमें देखना है यहाँ पे वो ये है कि अगर बैन जो हम जो सोचते हैं लगाने का, अगर सेंस रियली उसमें कुछ सेंस है, क्या पर्पस वो अपना बैन लगाने से करेंगे। क्या प्रोहिबिशन होने से अल्कोहल या तो नहीं बेचने से मीट या ई सिगरेट और अदर प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक जब नहीं पहुंचते हैं तो क्या फायदे क्या नुकसान। अल्टीमेटली तो हम सब जानते हैं कि उसमें काउंटर फिटिंग भी बढ़ जाता है और सरकार की झोली भी धीरे धीरे खाली होती जा रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पैसे सरकार को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। मैं एक पहले तो बात करूंगा ई सिगरेट की। जैसे कि ई सिगरेट एक ऐसा विषय है जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भाई अगर या तो आप उनको टॉबैको मान के जो सिगरेट पे बैन लगा हुआ है और जो आप कर रहे हैं वार्निंग मैसेजेस वगैरह, तो इनके ऊपर भी लगाइए, ई सिगरेट के ऊपर भी। उनकी एडवर्टीजमेंट को भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। और साइंटिस्ट जो है और हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तो एडवोकेट किया है कि अगर कोई बात को अगर आप छोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट हम लोग उसका जो नुकसान है, जिसको हम अंग्रेजी में हार्म रिडक्शन कहते हैं, उसको तो हमको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे होता है कि सिगरेट छोड़ नहीं सकते लोग, बहुत कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी उसमें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी चालू की है, जैसे कि है कि निकोटिन कंटेनिंग च्युइंग गम है, पैचिस है वगैरह। तो ऐसे विकल्प भी हमारे पास है जिससे मदद हो सकती है। और कई बार यह भी देखा गया है कि ये करने से लोगों की स्मोकिंग की हैबिट भी बंद हो सकती है। तो मानना पड़ेगा कि ये जो ई सिगरेट है वो तो परफेक्ट प्रोडक्ट तो है ही नहीं, लेकिन वो हार्म कम कर सकती है। क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया है कि up to 90 to 95% harm can be reduced by e-cigarette। और अगर हमको साइंटिफिक एविडेंस पर जाना है तो ये हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उसमें जो सिगरेट के कंपैरिजन में काफी कम हो जाते हैं। और यूएस एफडीए ने भी
ये मान्यता दे दी है कि सच प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेचे जा सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जिसको हम FCTC कहते हैं, जिसमें टोबैको की हार्म रिडक्शन की बात की गई है और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कंट्रोल कर सकता है। हम भी अपना एक एक्ट पास कर चुके हैं जिसको हम कॉटपा कहते हैं, कॉटपा एक्ट 2003, जो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट से जाना जाता है। अभी मैं दूसरी बात पे आ जाऊं। दूसरी बात जो है वो, क्योंकि मैं हेल्थ केयर से हूं, तो हम लोग मॉरल ग्राउंड पे काफी ऐसी डिसीजंस तो लेते हैं जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन एक टोटली डिफरेंट एक पहलू जो नजर आया है वो हेल्थ केयर में है। क्योंकि मेडिकल ओपिनियन अबाउट ये वेदर ये ड्रग बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए, उसके फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर मेडिकल ओपिनियन काफी डिवाइडेड है। ज्यादातर देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ज्यादा अलाउड नहीं होते हैं। फ्यू के जहाँ पे टीबी है उस टाइप के जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है वो अलाउड करते हैं। इंटरनेशनल फार्माकोपिया में भी इनको अलाउ किया गया है। सो वेरी फ्यू हु आर रियली रैशनल आर अलाउड। इंडिया में ही एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे अनसाइंटिफिक, इनकम्पैटिबल एंड क्लिनिकली ineffective fixed dose combinations are allowed, and some of them are very reckless for the people who don't understand that they should be not taken or taken with care. इंडिया में करीब 2 से 2.5 लाख ऐसे ब्रांडेड और जेनेरिक फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं। कई FDCs तो बैन किए गए हैं, लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फिक्स डोज में एक डोज फिक्स हो जाता है। तो अगर आपका क्लिनिशियन आपको अलग डोज देना चाहता है तो आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स खरीदने पड़ते हैं। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपको कई बार बड़े ज़्यादा प्राइस पे भी लेना पड़ता है क्योंकि क्लिनिशियन ने आपको रेकमेंड किया है। तो ये अक्सर देखा गया है। एक अमेरिकन क्लिनिशियन जो मेरे रेगुलर टच में है, वो अपना ये अमेरिकन कंज्यूमर मैगजीन हमेशा पढ़ती है और उनको बड़ा ही अच्छा लगा जब मैगजीन उन्होंने पढ़ा और उन्होंने देखा कि हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो वो रह नहीं पाए। तो वो सकायट्रिस्ट है, बोर्ड सर्टिफाइड एडल्ट एंड चाइल्ड सकायट्रिस्ट है और अपनी प्रैक्टिस करती है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो वो कहती है सकायट्री प्रेजेंट पेशेंट जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं ये साइड इफेक्ट्स के, और वो इसीलिए काफ़ी माइक्रो डोजिंग करती है। माइक्रो डोजिंग का मतलब यही हुआ कि हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, अलग अलग करती है। और वो कहती है कि मैं ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बहुत फेवर में नहीं हूँ। तो सकायट्री के पेशेंट है उनको अमेरिका में एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिसमें 2 बड़ी पोटेंट मेडिसिन है, और मैं जब पढ़ता था तब ये 3 मेडिसिन का हुआ करता था, जो स्टेलाजिन, मेराजिन, थोराजिन करके थी। लेकिन आज जो है ये जो है वो प्रोजेक एक तो है विच इज फ्लोक्सिटिन, और ज़ाइप्रेक्सा विच इज ओलांसिपेन। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो मिलता है ये महंगा भी है और पेशेंट्स को इनसे साइड इफेक्ट भी होती है, क्योंकि उनके अंदर जो ज़ाइप्रेक्सा का जो ओलांसिपिन का जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी पोटेंट है और उससे कभी कभी साइड इफेक्ट आती है। तो कहती है मैं ये प्रिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि एज ए क्लिनिशियन आई rather than get stuck with what manufacturer who put both
पोटेंट ड्रग टुगेदर एनकरेज नहीं करती हूँ। और हम लोग भी पेशेंट सेफ्टी में यही सिखाते हैं, पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन में, कि पेशेंट सेफ्टी इज पैरामाउंट इन प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग। दूसरी बात जो हुई वो ये है कि कंज्यूमर कहता है कि अभी किनका इंटरेस्ट इसमें सर्व हो रहा है ऐसे डिसीजंस में, पेशेंट का सर्व हो रहा है, कंज्यूमर का सर्व हो रहा है कि किसी और का हो रहा है। हम एज कंज्यूमर हमको ये सोचना है देश की क्या नीड है। आज देश की नीड ये है कि हम सेंसिबल हो बैन के अंदर, उसमें प्राइस कंट्रोल में रहे और हमारे जो अथॉरिटीज है ये बराबर इसको समझ ले। तो डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल हमारे सामने है। वजाहत साहब आने वाले हैं, लेट आएंगे थोड़े, 11:30 तक अभी आने वाले होंगे। वो IAS है, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नारायण आचार्य जी, क्योंकि यहाँ गुजरात के काफ़ी है, वो डीन रह चुके हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में, और एक WHO का सेंटर वहाँ गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है आयुष का, और वो अब मेरे ख्याल से आचार्य जी आप बड़ी पोस्ट पे दिल्ली पे जा रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। प्रकाश भाई बोसानिया जो पहले भी हमारे पास थे, हमारे मीटिंग में आते हैं, वो फॉर्मर मेंबर ऑफ कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली से है। और इनको सुनने के बाद हम सब अपने अपने व्यूज भी देंगे, उनको कोलेक्ट करेंगे बिजॉन मिश्रा जी, और वो हाईएस्ट अथॉरिटी दिल्ली में है उनको भेजते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। तो और टाइम न लेते हुए मैं उदय मन्ना जी से, अभी जो नेशनल कन्वीनर है RJS पॉजिटिव मीडिया के, और बिजॉन मिश्रा जी फाउंडर डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के, और आज के जो मॉडरेट है, उनको ये हैंड ओवर कर देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू प्रफुल्ल भाई, बहुत ब्यूटीफुल आपने मुद्दों को सामने लाए हैं एज एन इंट्रोडक्टरी स्पीकर। बहुत ही आभारी हैं आपके इनपुट्स से। हम देख रहे हैं रंजन बहन बहुत गौर से रंजन बहन, आप हम लोग सबको बताएंगे वो प्रफुल्ल भाई ने किस डॉक्टर के बारे में बताया USA में, जिसने लिखकर प्रफुल्ल भाई को बताया कि क्या होना चाहिए, ये शख्स कौन है, ये बड़ा पर्सनालिटी कौन है। रंजन भाई प्लीज हम लोग को सबको बताइए। She is our daughter Amita. Now she is Amita Upadhyay, and she is a psychiatrist and practicing for the last 20 years probably. And these are her thoughts that he told all of us. Thank you, Ranjan Ben. Thank you for giving birth to such a great personality. You know, we are also happy that you have given birth to a child who is so concerned about the health of the citizens. So having said that, without wasting any more time, you know, Praful Bhai has already introduced our chief guest, you know, Vaidya, Professor Ravi Narayan Acharya ji, जिनको हम लोग सब मानते हैं in terms of as an authority, who is heading the research wing of the ITRA in Jamnagar. हम लोग कभी भी कुछ भी टेक्निकल चीज आयुष के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलवेज हम लोग आचार्य जी से संपर्क करते हैं और उनका राय को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य जी, without we coming between you and the participants, I mean I coming between you and the participants, I would like that you please tell us your views on these irrational bans which happen, which could be in the interest of the citizens and the patients, where many things we always get away
because of lack of evidences. But when we have evidences, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा कि e-cigarettes gives less, reduces the harm caused by tobacco, which is used by the consumers. 12 lakh people die every year because of tobacco consumption. We are all the time working in terms of how to reduce the health burden on citizens, and still the government has gone ahead to ban a product which could have helped the consumers to make an informed choice. So having said things like that, and Praful Bhai also giving examples of fixed dose combinations which are irrationally used in certain places in our country, but overall overseas it is banned. Then, Ayush products, many of Ayush products, how they are very important for us, how they should be promoted, but they are not being promoted on some pretext or the other, and not allowed to be accessed by the consumers. So I would like you as our chief guest to kindly give your thoughts and let our participants know what an expert like you think on such issues. Acharya ji, the mic is yours. Thank you, Bijanda. My best regards to you. At the outset, I thank the organizer, the RJS Parivar, for involving me as a member of the RJS Parivar, and I hope I will continue in future also. And my regards to Uday Kumar Manna ji, the founders, and then my best regards to Praful Bhai, whom I admire a lot. During last 2 years, my association with the organization of different webinars for this Ayush mission. My regards to Habibullah ji, who is supposed to come. My regards to Prakash Bhai Bosania, who is an eminent personality in his field, and we are going to listen. हम उनको सुनेंगे आज उनके जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में, और विजन दास जी को तो सुनेंगे ही थ्रू आउट द कोऑर्डिनेटर्स, ऑल दिस थिंग्स. एंड माय regards to also all the participants, particularly whatever I saw in the screen, maximum ladies लोग हैं. पहली बार देखा कि एक organizations में live sessions में, and another positive thing is in this maximum persons whom I am observing are senior citizens, and with a positive thinking, the background of this RJS Parivar, many people are from Gujarat. I saw from the screen and name, and all the seniors are here. So because I am not an expert on this social activities, but I will speak my views how the ban has affected, as Bijanda told, in our healthcare system, and Praful Bhai is also known for the healthcare management. Dear friends, कोई भी चीज होती है तो गवर्नमेंट हमेशा एक एंगल को लेके it to satisfy somebody or to have an immediate action so that we are proactive. Government ban लगा देती है और कई कंट्री भी ban लगाते हैं without considering the thing as a whole. The first example I can say here, the ban on mercury. The ban on mercury. Government of India, world sectors mercury पे ban किया. Then Government of India also started doing that. But they don't consider the Ayush sector while banning the mercury. हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट तो आयुर्वेद में हर्बल ड्रग्स पे भी मैक्सिमम प्रोडक्ट हर्बल आयुर्वेद सिद्ध यूनानी हर्बल ड्रग्स होते हैं, बट इनके सब सिद्ध यूनानी आयुर्वेद मरकुरी जो पारद कहते हैं उससे मैक्सिमम प्रिपरेशंस हमारा बनता है और दे आर इफेक्टिव. We are talking about Ayurveda is late active. Ayurveda doesn't respond quickly. But when we mix these mercurial preparations, when we mix the minerals, when we mix the metal, Ayurveda तो thousands years पहले था ही, लेकिन बाद में in 13th, 10th, 11th century onwards, this Rasasastra comes, and where maximum mercurial preparations for quick acting. That is the point that how Indian traditions, जो जिस RJS परिवार का ये है motto है कि how the research in Indian system of medicines started, and
our classified ancient charak, sushrut, bag, but they mainly depends upon herbal drugs. But time and again research activities goes on, and Nagarjuna started using metals and minerals for quick acting drugs. But after that was stagnated, that was for 10, only 3 to 2 centuries. That was then we are on the rule of Mughal, English people, all that research activity stopped. So we are not able to have some quick acting drugs after that with good quality of research. But मर्कुरी बैन ऐसे एक बैन हो गया जिसमें अभी होने जा रहा है, पहले तो नहीं था, अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर कवर कर रहा है, कई डिबेट हो चुका है उस पे कि मर्कुरी बैन. सो हाउ द विल हैव एन इफेक्टिव मेडिसिन्स इन दैट? नो डाउट मर्कुरी हैज एन एडवर्स इफेक्ट in the health sector or in or social sector also, but irrationally banning the mercury, that nobody can use mercury, and in that, so that it is very not a positive thing at all for that purpose. So in the so we are fighting and hope the other people also associate. Another thing, but the main motto of this RJS Parivar is positive thinking. But as on today, there are certain people with their certain कुछ उनका मानसिकता ऐसा होता है कि वो एक प्रिपेयर्ड एजेंडा पे चलते हैं. तो आयुष सेक्टर को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी गुडची एक ड्रग आप लोगों ने देखा होगा, दो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, और न्यूज़पेपर में आ जाता है कि आयुर्वेद दवाई लेने से ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है. एक या दो केस पे कुछ इरेशनल योग्य के विचार प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अगर दवाई नहीं लेते हैं तो कोई एडवर्स इफेक्ट मिल जाता है. अगर ठीक से नहीं खाता है कोई दवाई, इवन इफ हम लोग सब जानते हैं चावल को अगर ज्यादा खा लेते हैं, चावल भी शरीर में खराब कर देता है, हमको डिजीज कंडीशंस पे ले जाता है. पानी भी ज्यादा पी लेने से भी हम जो खाते हैं पचता नहीं, वो भी कंडीशन. लेकिन ये तो दवाई है, तो दवाई को अगर ठीक ढंग से हम नहीं खाएंगे, ठीक जगह प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर डोज, प्रॉपर ड्यूरेशन से हम प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही होगा. तो ऐसा कोई नहीं चीज कि आयुर्वेद दवाई एडवर्स इफेक्ट नहीं करता है, बट ये जस्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए. अनदर बैन इज ऑन सर इज ऑन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स. प्रफुल्ल भाई बताएंगे कि कई कंट्री हमारा मेडिसिन को बैन कर रखे हैं. क्यों बैन कर रखे हैं? इरेशनली, बिकॉज सर्टेन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कार्सिनोजेनिक. एक एग्जांपल देता हूं बच्चा का. Bacha is such a beautiful drug, Ecorus. We have the psychiatric treatment or digestive disorders or to speak something. Those who are not अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनको हमारा दवाई बच्चों से लेके ये तक मेमोरी बढ़ाने के लिए बच्चा इज ए वेरी फाइन ड्रग्स, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ड्रग्स आल्सो. लेकिन उसमें फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है बीटासोरन, जो कि कोई एक छोटे मोटे जो रिसर्च वर्क हुआ है चूहे पर, उसमें कैंसर एक्टिविटी मिल गया. लेकिन बट इन दैट वे आयुर्वेद बच्चा को मेनी कंट्रीज बैन, डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव बैन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बच्चा, तो कंटेंट्स बच्चा. सो ये बैन हो, ऐसे ही जैसे पाइपराइन भी है. फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को, एक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल देने के बाद उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट. ड्रग इज होलिस्टिक अप्रोच. हमेशा आप लोग सब जानते हैं, हम जो हर्बल में आयुर्वेद का अप्रोच रहता है वो होलिस्टिक अप्रोच है, ड्रग एज ए होल, नॉट एज ए सिंगल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स. जब हम सिंगल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल देते हैं उसका एडवर्स इफेक्ट तो होता ही है तब. लेकिन उस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम से हम एक दवाई को मान लेते हैं कि बीटासोरन के जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके वजह से हम बच्चा को मान लिए कि बच्चा तो हाईलाइट, मीडिया हाईलाइट हो जाता है, नेगेटिव एक इम्पैक्ट देते हैं, नेगेटिव मीडिया हाईलाइट हो जाता है कि आयुर्वेद दवा पिपली है, आंवला है, हरिडा है, वो खराब इफेक्ट देता है. तब एक मीडिया नेगेटिव कई जगह पे खराब वो चीज दे जाता है. तो ये सब चीज में आशा है कि बुसामिया जी और ये सर इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और डिटेल्स. पर शुरू में बहुत बहुत आभारी हूँ कि प्रफुल्ल भाई, जो कि इसका बेस्ट सिगरेट से सच्चे नीड प्रोडक्ट एंड कंडीशन स्पेसिफिक, and we have put a ban on that without considering some positive factors also. So again I thank the RJS Parivar, Bijanda, Praful Bhai, and for giving me an honor by inviting me as a chief guest
of this. I feel honored, and I thank all of you, and hope in the next 1 hour, up to 1 hour, we'll listen the expertise view of experts, and particularly the senior citizens, those who have a vast experience on different aspects. We'll have a good discussion also. And I thank and Thank you. Thank you very much, Acharya ji. In fact, you have also raised some very important points जिसको हम लोग को सोचना चाहिए और आगे कैसे ले जा सकते हैं उस मुद्दे को, in the interest of the citizens. We are very grateful that you took your time and came and agreed to be our chief guest for this conversation today. Your words are very, very important for us because we depend on credible information. Consumer always ये चाहता है कि हमारे सामने उस ढंग का विकल्प हो जो हमारे लिए हानिकारक ना हो, नुकसानदायक ना हो, लेकिन हमको चॉइस मिले। ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को थोपना चाहेंगे हमारे ऊपर और आप चाहेंगे कि नहीं केवल उसी ब्रांड का कंपनी को हम उत्साह दें हमको बेचने के लिए। नहीं, हमारे देश में कई छोटे उद्योग में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने को सही ढंग से मार्केट नहीं कर पाते और वहां हम लोग का जिम्मेदारी आता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का, उपभोक्ता संरक्षण को लेकर जो लोग काम करते हैं। हमारे नेक्स्ट वक्ता है, एंड एज यू ऑल हर्ड, प्रफुल्ल भाई ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया, आचार्य जी भी उनको रिकॉग्नाइज किया, हमारे प्रकाश भाई बोसामिया जी जो गुजरात से हैं और जो फॉर्मर गवर्निंग काउंसिल मेंबर, इनफैक्ट अभी भी वो गवर्निंग काउंसिल जारी है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो एपेक्स बॉडी है कंज्यूमर्स का इंडिया में। सर प्लीज अभी अनम्यूट कीजिए अपने को, आपके पास मौका आएगा तब आप बात करेंगे। प्लीज आप प्लीज म्यूट कीजिए अपने को मनोज भाई। ओके सर, ओके ओके। 462 रुपये हो गया, ठीक है। प्लीज म्यूट कीजिए अपने को और सबको मौका मिलेगा। अभी हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच में गुजरात से प्रकाश भाई जो आए हैं, प्रकाश भाई आप प्लीज अनम्यूट करके आइए और हम लोग को बताइए जो आज का मुद्दा है, जो परिचर्चा है, एज अ गेस्ट स्पीकर आपका क्या सोच है इस मुद्दे को लेकर। प्रकाश भाई। नमस्कार। नमस्कार। आरजेएस ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित करके जो बुलाया है उसी लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साथ हमारे प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी का भी आभारी हूँ। इस मंच पे हबीबुल्ला, आचार्य जी, दीपक माथुर जी, प्रफुल्ल भाई सेठ, सुमन कुमारी और हमारे सभी आरजेएस परिवार का सभ्यों को मैं आदर नमस्कार करता हूं और मेरी बात को आगे दोहराता हूं। आज हम प्रभावित शासन विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिबंध यानी कि बैन, सरकार सभी जगह पे अच्छी तरह से काम करती है और सभी जगह पे बैन जहां रखना चाहिए वहां बैन होता है, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर मैं थोड़ी गुजरात की बात करूंगा तो गुजरात में पूरा अल्कोहल यानी दारू बैन है। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार जो भी नियमों का लागू किए जा रहे हैं उसी के बारे में कि हमारी जो गुजरात की बॉर्डर है उसमें उसके बाजू के बॉर्डर पे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित दीव दमन, वहां अल्कोहल दारू की पूरा बैन नहीं है वहां पे। मगर यहाँ से वो बॉर्डर के आजू बाजू में 15-20 किलोमीटर में उसको आसानी से मिल जाता है। ये प्रतिबंध होने के बाद ये गुजरात में आने के लिए स्मगलिंग होता है। फिर भी जो गुजरात में दारू आसानी से मिल जाता है तो बैन का अर्थ क्या है?
मैं किसी को ऐसे नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पर बैन के बारे में बात करना चाहता हूं। फिर भी सही मानो तो सभी जगह से, अन्यथा प्रतिबंध हटा देना चाहिए पूरे गुजरात में, क्योंकि आजू बाजू के प्रभावित देशों में वो बैन तो हो गया है, बैन नहीं हुआ है, और ये गुजरात में ही बैन है। और उसी हिसाब से गुजरात को टैक्स का भी लॉस होता है, जो गुजरात में मिलेगा तो टैक्स भी मिलेगा उसको। और मनुष्य प्रकृति ऐसी है कि जिसको मना करो तो वो पहले करेगा, ये बच्चों की तरह बात है। यहाँ गुजरात में पीना मना है, मगर गुजरात में पूरी तरह से मिल रहा है। और हमें ये भी जानकर और दिमाग में एक बैठना चाहिए कि टीवी पे जो ऐड आता है और घुमा फिरा के, फॉर एग्जाम्पल दारू की ऐड में सोडा या पानी बारे में कंपनी उसकी जाहिरात कर रही है, वो आप देख रहे हो। ऐसी एडवर्टाइज करने वाले जिम्मेदार को ऐड में नहीं आना चाहिए। कुछ कलाकार ऐसे काम करते हैं कि एडवर्टाइज में बहुत अच्छा उसका कलाकार का ऐड होने के कारण उसकी ऐड का असर पड़ता है कि हमें यही करना चाहिए। सरकार से के जो भी अधिकारी है, सरकार से के जो अधिकारी है वो डर या लालच के आया बिना कायदे को अच्छी तरह से पालन करे, ऐसी बात करना चाहता हूं मैं। हमारे गुजरात में सरकार श्री ने नियम बनाया था कि जो 2 साल पहले रूपाणी जी की सरकार थी, उसमें ऐसा किया गया था कि अल्कोहल किसी भी एरिया में से मिलेगा तो वहां का पुलिस जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी स्टाफ होगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। मगर वो बात तो कागज पर ही रह गई और आज ये ऐसा हो रहा है। और एक आगे बात बता दूं कि आजकल आप अखबार में भी पढ़ रहे हो और ये बात सब जगह पे जाहिर में बोली जा रही है कि बात गलत है। मैं किसी पे आक्षेप करके किसी को बदनाम की नहीं, मगर जो बैन है वो तो बैन होना ही चाहिए। ऐसे पान गुटखा उसका पूरा बैन है, मगर 18 साल के बच्चों को ये खाना नहीं चाहिए। मगर स्कूल है उसी के बाजू में ही ये पान गुटखा का ठेला लगा के बैठा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी बात करेंगे हम तो कितनी बात करेंगे तो बहुत होगा। ऐसे भी हमारे जो नमकीन आता है उसमें भी जो वेस्ट होता है प्लास्टिक का, उससे भी गंदगी होती है। पान गुटखा खा के कहीं पे भी थूकते हो, दीवार और जमीन पे भी वो उसका गंदगी का माहौल होता है। और मेरे पहले माथुर जी ने और आचार्य जी बताया वो ई सिगार के बारे में, उसका पूरा बैन लगा है, तो ये पान गुटखा सिगरेट को क्यों बैन नहीं लगा रहा है? ये मेरा फुल सुझाव है। ऐसे किसी को नीचा दिखाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि तंबाकू को जो बैन किया है तो सही ढंग से बैन किया जाना चाहिए। और इस मंच के लिए और आज मैं बहुत ज्यादा और इस सब बात के लिए जितना बोलो इतना ज्यादा हो जाएगा। प्लास्टिक का भी बैन का है, मगर समय के अभाव से हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मगर यहाँ बोलने के लिए जो मेरे को आरजेएस ने जो आप प्रदान किया है और यहाँ बोलने का मौका दिया है, इसे सभी आरजेएस परिवार और बिजन सिंह का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ प्रकाश भाई कि आज हमारे गुजरात में से हमारे गुजरात के फुल साहब के एडिटर, दिव्य भास्कर का एडिटर और हमारे पूर्व मेयर पारुलबेन त्रिवेदी, बकुल भाई चातुर्वेदी, तारक भाई सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये भी हमारी एक सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब। हम अभी हम गुजरात से हमारे बहुत सक्रिय भाई है। हेलो, प्लीज आपको मौका, सर मेरी वीडियो नहीं आ रही है इसलिए आपको जब मौका दिया जाएगा तब आपको हम लोग देंगे। आप प्लीज प्लीज इंतजार कीजिए, प्लीज इंतजार कीजिए। आपको वीडियो अपने आप स्टार्ट करना पड़ता है, हम लोग नहीं कर सकते। एनीवे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे। हमारे भाई किशन परमार जी हैं जो 1989 से उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए हैं। करीब 50 जिले के में उनके प्रतिनिधि लोग हैं उत्तर प्रदेश में। वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में
रहे, द फर्स्ट काउंसिल जब सेंट्रल CCPA जब गठन हुआ, और तब से हम लोग सब एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और आप लोग सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का सेवा करता है। इट्स अ बिग स्टेट, इट हैज लॉट ऑफ चैलेंजेस, and to work in Uttar Pradesh means that you have almost captured 1/3 of India. So I would like to ask परमार भाई, आपका क्या सोच है? और आप पढ़े होंगे हमारा फरवरी एडिशन अवेयर कंज्यूमर, जिसपे हम लोग इस सब्जेक्ट को लेकर बात किए हैं, और आज जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको यदि कॉपी नहीं मिला है हम लोग के मैगजीन के, आप प्लीज हमको बताइए, व्हाट्सएप में हम आपको भेजेंगे सॉफ्ट कॉपी मैगजीन का। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट किशन परमार जी टू काइंडली गिव हिज व्यूज in terms of irrational bans or bans which are being done with certain vested motive. So विजयन सर, वजाहत हबीबुल्ला सर भी जुड़ गए हैं। thank you for informing me. हम लोग किशन भाई को सुनने के बाद हबीबुल्ला जी के पास जाएंगे। किशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विजयन। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ उपभोक्ताओं की ओर से मैं भारतवर्ष से आए हुए सभी उपभोक्ता साथियों का स्वागत करता हूं, और आपको इसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को अपनी बात कहने का मौका दिया। आपकी मैगजीन में हमेशा पढ़ता हूं, और अपने जो मेंबर्स हैं उनको ही भेजता हूं, और वो लोग भी पढ़ते हैं। उसका इम्पैक्ट ये है कि आज तमाम उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश की आबादी का 1/5 हिस्सा है, क्योंकि हमारी आबादी 25 करोड़ है और देश की आबादी 130 करोड़ है। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि 1989 के बाद जो कंज्यूमर मूवमेंट में हम लोगों ने शुरुआत की, आपसे हमने काफ़ी कुछ सीखा। आप हमारे गुरु भी हैं, आप हमें कई चीज़ें बताते हैं, और आपकी जो बात है वो हम डाउन टू अर्थ तक और ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा विशेष सब्जेक्ट है, बैन। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बैन 2 प्रकार का होता है। एक बैन तो कानून लगाता है और दूसरा बैन समाज लगाता है। जो समाज का बैन होता है वो इफेक्टिव होता है, लेकिन कानून का बैन 30 to 40% इफेक्टिव होता है, 60% नहीं होता है। मेरे मित्रों ने अभी टोबैको पर बात की, ई सिगरेट पर बात हुई है। निश्चित बात है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो कम हानिकारक हैं, कंज्यूमर्स को उसकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अभी हमारे एक मित्र ने एंटी अल्कोहल की पॉलिसी की बात की, बिहार में और गुजरात में, देश के 2 हिस्सों में अल्कोहल पर बैन है। लेकिन दुख का विषय ये है कि यदि बैन लग जाएगा तो निश्चित बात है कि कंट्री मेट बनेगी, और बिहार में आए दिन मौतें हो रही हैं जो शराब से हो रही हैं, रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। इसके साथ एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि कानून ये था कि जेब काटने वालों को सजाए मौत दी जाएगी चौराहे पर, और इस बात में 3 अपराधी पकड़े गए और राजा ने कहा कि इनको चौराहे पर फांसी लगा दो। फांसी को देखने के लिए 3000 लोग इकट्ठे थे कि फांसी कैसे होती जेब कतरों को। और मजे की बात ये हुई, जब वो लोग अपने घरों पर लौट के गए तो 300 लोगों की जेबें और कट चुकी थी। कानून अपना काम करता है, कानून की प्रॉपर समीक्षा नहीं होगी तब तक बैन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारे माननीय चुनाव आयोग ने हमारी वर्तमान
चुनाव पद्धति में तमाम बैन लगा रखे। क्या हमारे नीति निर्धारक उन बातों को मानते हैं? धारा 144 लगती है, 5 लोगों पे ज्यादा को इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है, बैन है। क्या फिर भी लोग मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अल्कोहल की बात करें तो हमारे सभी राज्यों में एक विभाग तो शराब बिकवाता है और एक विभाग शराब को रोकता है। क्या मजे की बात है। एक कहता है शराब मत पियो, एक कहता है शराब पियो। जगह जगह मोहल्ले में दुकानें खुलवाती। तो क्या इससे रोक लग जाएगी? नहीं रोक लगेगी। ये सब मामला सोशल अवेयरनेस का है। जब तक हमारे देश का नागरिक अवेयर नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं इन सब बातों का। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और लेजिस्लेटिव है वो दोनों मिलकर के फैसला करती हैं हमें करना क्या है। लेकिन कभी वो बिजॉन जी से, प्रफुल्ल जी से, हमारे जैसे लोगों से कभी एडवाइस लेते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं समाज का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक ये सेंसिटिविटी नहीं होगी तब तक बैन का कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे आपने ई सिगरेट की बात कही, ENDS सिस्टम है उसका, इलेक्ट्रॉनिकली निकोटिन डिलीवरी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। तमाम महिलाएं बीड़ी सिगरेट पीती हैं, उनके लिए बड़ी लाभकारी है। धुआं नहीं उठेगा, चुपचाप पी लेंगी, लेकिन नहीं पी सकते। ऐसे लोग जो एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग करते हैं, पैसिव ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पास पड़ोस के लोगों के लिए। लेकिन सरकार ने ई हुक्का, ई सिगरेट पर बैन लगा दिया है। नुकसान हो रहा है, स्मगलिंग होके आ रहा है, बिकता सब है, केवल कानूनी नहीं है। अरे भाई कानूनी कर दो इसको तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। एक और टर्म बताना चाहूँगा, गैम्बलिंग। तमाम देशों के अंदर गैम्बलिंग लीगल है और वहाँ सरकार टैक्स वसूलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन जुआ फिर भी होता है, सट्टा फिर भी लगता है। तो क्या सरकार रोक पाई इसको? नहीं रोक पाई। तो जिस चीज को आप रोक नहीं पा रहे हैं उसका बीच का रास्ता निकालिए, वो कम होता जाए, कम हार्मफुल हो, ज्यादा नुकसान न करे, मरने पे ज्यादा अच्छा बीमार हो गए रह जाए। तो इस प्रकार से आपकी जो मैगजीन का पूरा पार्ट, फरवरी का इशू बैन पर ही आधारित है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इतनी उपयोगी मैगजीन पढ़ने का पाठक हूँ और मेरे और कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबको PDF पर भेजता हूँ। आज भी मैंने तमाम लोगों को भेजा। तो मेरा यही सुझाव है, हमारे नीति निर्धारक, हमारे MLA MP, हमारे सोशल वर्कर्स इस पर विचार करें कि बैन किसी चीज़ का उपाय नहीं है। बैन के अतिरिक्त और उपाय अपनाए जाएं ताकि बुराइयां कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करूँगा। थैंक यू वेरी मच किशन परमार जी। आपने बहुत संक्षेप में सारे मुद्दे को बहुत सही ढंग से रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यूपी में आप इसका लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन तक आपका आवाज पहुंचे और हम लोग बदलाव ला सके जो हम लोग के सबके पक्ष में हो, जो हम लोग के सबके मतलब फेवर में हो। ये कहते हुए आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि आवर presidential address, chairman of the Patient Safety and Access Initiative of India Foundation, Shri Wajaid Habibullah ji has joined us. उनको कोई परिचय देने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। In fact, my first opportunity which I got in my life to have met him was when he became the secretary in the Department of Consumer Affairs. जब वो सेक्रेटरी सचिव बनकर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आए, सबसे बड़े गुण जो हमको लगा हमारे नजरिया से, वो सबसे मिलते थे। हम लोग जैसे लोगों तक भी को वो समय देते थे, जबकि हम लोग तंत्र में कहीं नहीं थे उस समय। और कभी भी हम यदि उनको बुलाते थे कि आप चलिए हमारे दोस्तों से मिलिए जो उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े हुए हैं,
हमको याद है गांधी पीस फाउंडेशन में हम लोग एक परिचर्चा रखे थे, वो इमीडिएटली एक्सेप्ट किए और आए। और उनका जो मतलब हम लोग के साथ एक जुड़ गया एक संबंध, वो आज तक है। वो है कैसे कि ही बिलीव्स दैट आप जब तक आम आदमियों के साथ जुड़ेंगे नहीं, आप वाकई में अपना जो ओपिनियन है उसको आप नहीं बना सकते। वो उसके बाद गए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में सचिव बन के गए। फिर वो अपॉइंट हुए द फर्स्ट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आरटीआई के तहत जो बना संगठन, इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके चीफ बनकर गए। फिर माइनॉरिटी कमीशन में वो चेयरमैन बने। और जब वो सरकारी तंत्र से निकल गए तब वो इमीडिएटली एक्सेप्ट किए हम लोग की इनविटेशन और कहे ठीक है, हम आपके पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव के हम चेयरमैनशिप ले सकते हैं। कितना बड़ा बड़प्पन है उनके अंदर। और आज तक कभी भी कुछ भी समय यदि हम लोग उनसे मांगते हैं, उनके विचार मांगते हैं, वो तुरंत हम लोग को देते हैं। और फेब्रुअरी इशू में आप उनका इंटरव्यू पढ़े होंगे, कितने संक्षेप में, कितने ब्यूटीफुली अपने बात को रखे हैं वो उस इंटरव्यू में। प्लीज पढ़िएगा यदि आप नहीं पढ़े हैं तो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू नाउ रिक्वेस्ट our chairman of the Patient Safety and Access Initiative of India Foundation, श्री वजायद हबीबुल्ला जी, जो आजकल लखनऊ में स्थापित हैं। वो लखनऊ से वो कार्यक्रम कर रहे हैं अपना। और I am really grateful that sir you took your time and you came, and as you promised us, we are all anxiously waiting to listen to you. श्री वजायद हबीबुल्ला जी। बिजॉन मिश्रा जी, भाइयों बहनों, प्रणाम। धन्यवाद बिजॉन जी, आपने मेरी इतनी प्रशंसा की सबके सामने। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस वेबिनार में आए हैं अपना समय देके, और न केवल इसमें बातचीत सुनने के लिए, चर्चा किंतु चर्चा करने के लिए, ताकि हमारी जो जानकारी है इस विषय पे वो गहरी हो सके और हम एक एनजीओ होते हुए अधिक असरदार हो सकेंगे कि आगे जो नीति अपनाती है सरकार, और उससे भी महत्वपूर्ण, जैसे परमार जी ने कहा, जो नीति अपनाती है समाज। और यही मेरे आप से बात आज करने का विषय है। किंतु इससे पहले तो मैं कहूंगा बिजॉन जी से, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हाई प्रेज, लेकिन लोगों से मिलना ये खास गुण हमारा तो काम ही ये है। जैसे आपको पता है, हम जो IAS कार्यकर्ता है या जो भी सरकारी कार्य करता है, हमें क्या कहा जाता है? पब्लिक सर्वेंट्स। तो हम तो एक जमहूरी निजाम, एक लोकतंत्र में जनता के नौकर हैं। तो अपने अपने मालिक से मिलना, क्या ये कोई खास है गुण? आपको बताएं कहानी, आपको हम कहानी बताएंगे। बताइए। नहीं, हम आपको बताएंगे कि कैसे हमको सबसे ऊंचे ऊंचे अथॉरिटीज तक मिलना पड़े किसी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, डिपार्टमेंट के जो सचिव बनते हैं। आप लोग चले जाने के बाद जो सचिव लोग आए, हमको नहीं मालूम क्यों वो लोग लोगों से मिलने का झिझक रखते हैं। तो बस बिजॉन जी, आपकी ने अपनी उंगली उसी समस्या पे रखी है जो इस सारे चर्चा के बुनियाद की बात है। वो ये है कि अगर हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं और उस पे नीति नहीं बनाते हैं, तो ये बैन्स आदि जो काम है, इनका कोई मतलब है नहीं, और न ही इनका कोई स्थान है एक लोकतंत्र में।
लोकतंत्र में, और इसके बारे में मैंने कई दफा बात किया है, लिखा है, लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता के हाथ में सरकार है। और ये आपने आरटीआई का जिक्र किया है। आरटीआई की थीम यही है कि मालिक अपने नौकर से मांगे, प्रश्न पूछे कि आपने क्या काम किया। यही थीम है। हमारा जो उपभोक्ता सुरक्षा कानून बना है, यह तब बना था जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था, और बिजॉन जी को अच्छी तरह से पता है कि जो इसकी आइडिया थी ये इन्हीं के मन से निकली, और जो उस समय के प्रधानमंत्री को ये बता पाए कि इसकी आवश्यकता है। और फौरन उन्हें समझा नहीं, उन्हें कहा कि मैंने कह दिया, प्रधानमंत्री कहाँ सा याद रखेंगे, याद रखा हूँ। और फिर उससे ये कानून बना। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बैन्स के सिलसिले में ही, कि इसमें मेरे ख्याल में, और मैंने इसके बारे में लिखा भी है अपने शुरू, कभी कभी बैन की आवश्यकता है, अक्सर बैन की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता स्वयं सामान को न लेने से, या उसमें आपस में ये फैसला करने से कि हम इस प्रकार की चीज नहीं लेने के लिए तैयार है, और फिर कोशिश ये करने की कार्रवाई करे कि जो उसमें हानिकारक बातें हैं उस प्रोडक्ट में, टू ब्रिंग दैट बिफोर द पीपल। ये सारा काम हमारा ये करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून, इसका महत्व क्या है? ये तो सब स्वीकार करते हैं कि कंज्यूमर इज किंग, जो उपभोक्ता है उसी का राज। किंतु बात तो करते हैं, जैसे मैंने कहा, पब्लिक सर्वेंट हम सब स्वीकार करते हैं, किंतु क्या हम पब्लिक सर्वेंट हैं? इसी प्रकार से इज कंज्यूमर किंग? नहीं। हमें ये पता है कि एक कैपिटलिस्ट आर्थिक ढांचे में जो कैपिटलिस्ट है वो पिवटल है। तो सरकार का ये काम बन जाता है कि जो उपभोक्ता है उसकी सुरक्षा उससे करे, जो कोशिश ये करेगा कि उसका फायदा उठा के अपने लिए पैसे बनाए, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की बुनियाद है। इसलिए सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो ये देखे कि जनता के स्वास्थ्य के, एजुकेशन के, शिक्षा के, रहने सहने के जिन वस्तुओं का हानि होती है उस पर रोक। लेकिन एक लोकतंत्र में ये कौन फैसला करे कि किस प्रकार के सामाजिक कमजोरियां या आर्थिक कमजोरियां ऐसी हैं जो हानिकारक हैं, और क्यों हानिकारक? जैसे भी बातचीत हुई है टोबैको के बारे में, अल्कोहल के बारे में, ये आम लोग जानते हैं कि इसमें क्या कमजोरियां हैं। किंतु जैसे परमार जी ने अभी कहा कि इस पे बैन लगाने से जन के हित में बात होती है? नहीं होती है, क्योंकि इलीगल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और जो जनता के स्वास्थ्य की रेखा थी वो और भी गिर जाती। ये तो पता है, अक्सर सरकार में भी रह के ये एक चुनौती आती थी कि जो पैसे लोग बना रहे हैं वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करके बगैर शराब खर्च कर रहे हैं। ये बातें हैं। इसलिए हमें
और विशेष तौर पे हम जैसे लोग जो हम आज यहाँ जमा हैं, हम पे ये कर्तव्य बनता है कि सरकार का हाथ पकड़े, सरकार को समझाए। इस शक्ति के जो बैन करने की शक्ति है सरकार को कानून ने दिया है, उसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे समाज को फायदा मिले, समाज के हित में ये जाए। Not that it will somehow economically, financially, or politically favor the government. That is the important consumer protection. And under that act, the necessity for issuing a citizen's charter. I should know what to expect from my government. I should know what to expect from my shop. What can I get from him? And what is he prepared to give me? क्या कुछ डिस्काउंट देने के लिए तैयार है? अगर डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, कैसे, किस चीज पे, किस वजह से? All these things are supposed to be looked at. So that is why the Consumer Protection Act, as I said, was expected to put consumer at the center of the economic structure. इसलिए हमें आज और आगे भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि क्या ये हो रहा है। जितने भी उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्ट और आरटीआई, पंचायती राज के बनाने में मेरा काफी हाथ था। ये जो नीतियां जिनकी सहायता मैंने दी थी सरकार में होते हुए, और मेरी अपनी जो कमिटमेंट थी, जो ख्याल था, जो विचार, वह यही था कि किस प्रकार से पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इसको शक्तिशाली बनाया जा सके। क्योंकि अगर जनता के हित और जनता जो अपनी हित समझती है, जनता के हित की नीतियां न हो, तो वह नीति एक लोकतांत्रिक नीति नहीं की जा सकती। अब देखिए, हमें बहुत सारी चीज जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, और सबसे अहम ये है हमारा जो संविधान। संविधान में भी पीपल सेंट्रिक संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी अपने को ये संविधान देते हैं। इसी प्रकार से शुरू होता है। लेकिन हर एक जो भारतवासी है वो उपभोक्ता भी है। तो ये, जैसे मैंने कहा, ये हमारे संविधान में पहचान लिया गया है। जैसे मैंने कहा, पब्लिक सर्वेंट भी पहचान लिए गए, किंतु हमें आपस में, और इस प्रकार की वेबिनार होने का मतलब ये है, आपस में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्या हम उस संविधान को बनाने वालों के वारिस होने के नाते पूरा काम वैसे ही कर रहे हैं जैसे संविधान का सपना था, बनाने का सपना था, क्या नहीं? और उसको जायजा लेने के लिए ये आवश्यक कि हमें सोचना चाहिए कि सरकार की जो नीतियां, और विशेष तौर पे क्योंकि विषय आज का वही बैन लगाने, ये स्वीकार करते हुए कि अक्सर, और इसमें मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी काफी चर्चा हो कि किस पे बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, किंतु ये प्रश्न है कि बैन करने की आवश्यकता है या केवल रेगुलेशन करने की आवश्यकता
अक्सर जैसे अफीम की का उदाहरण ले लो, क्योंकि हमारे इलाके में बाराबंकी जिले में काफी अफीम है, लेकिन लाइसेंस दिया जाता है क्योंकि अफीम दवाइयों के लिए भी आवश्यक है, किंतु अफीम, opium is also an intoxicant, which is harmful. So if you are allowing it, how are you allowing it? You regulate. तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों की, और परमार साहब ने बहुत सारे में उदाहरण दिए हैं, तो दोबारा आपको बताने की नहीं है। इस प्रकार से ये सामाजिक जो या औद्योगिक जो विकास, इसको रेगुलेट या एक डायरेक्शन में लिया जाए जो कि जन के हित में हो। इसमें हम जैसों का ये कर्तव्य सरकार की नोटिस में लाते रहे कि भाई ये जो रास्ता आप बता रहे हैं ये गलत है, इस रास्ते पे आइए और हमारे साथ कमाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया, यू नो, एंड रियली वेरी ब्यूटीफुल, एंड एज यू वेरी राइटली सेड, यू नो, यदि आप मालिक को ही नहीं सुनेंगे तो आप सेवा क्या करेंगे? तो मालिक को तो सुनना अनिवार्य होता है। जो आपने मसूरी में कूट कूट कर लोगों को पढ़ाए हैं और मसूरी जब तक लोग नहीं जाते हैं तब तक वो एक सिविल सर्वेंट नहीं बनते हैं। तो आपने तो ऐसा इंस्टीट्यूशन को संभाले हैं जहां पर कई लाखों, यू नो, ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स निकल कर आए हैं, और आप उस इंस्टीट्यूशन को कई सालों तक चलाए भी हैं, जो हम लोग सब जानते हैं। और हम लोग ऑलवेज ये अपेक्षा रखेंगे कि आप हम लोग को मार्गदर्शन देते रहिए जैसे आप दे रहे हैं, और हम लोग को एक सही रास्ते पे ले आइए जहां पर लोगों तक हम लोग का काम पहुंच सके और उनको फायदे हो। यू नो, हम लोग ऑलवेज, एज यू नो, आप हेल्थ सेक्टर को लीड कर रहे हैं, हमारे जो संस्थाएं हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं उसको आप लीड कर रहे हैं, और स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, स्वास्थ्य का सुरक्षा, स्वास्थ्य का उपलब्ध लोगों तक पहुंचाना, और जो आयुष्मान भारत के तहत और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत हम लोग कर रहे हैं उसको लेकर। So without wasting any time, I would now like to open up the conversation to the participants. I'll start with Professor Ramaiah because he is from US, and at this odd time he's joining us from US. So Professor Ramaiah, we would like to start with you. Everybody is requested, सबको हमारा एक विनती है कि आप 1 मिनट से ज्यादा अपना इंटरवेंशन मत रखिए। यदि कोई क्लियर प्रश्न है किसी से पूछने का पैनल में जिनको आप सुने हैं तो आप उनको प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन अपना संक्षेप में रखिए अपना बात हम लोग के सामने। तो अभी हम लोग के पास करीब 15 मिनट और है, 15 मिनट में जितने लोगों को हम लोग ले सकते हैं लेंगे। प्रोफेसर रमैया। Thank you very much for the opportunity. I have some comments rather than questions, if you don't mind. Many natural products are not unsafe. For some reason, some people think that they are unsafe. However, they may be unsafe, but in combination with others, they are not. Therefore, many of our Ayurvedic products should not be taken as isolation case and saying that they should not be banned that way. There should be some investigation by the people who are knowledgeable. If suppose my expertise in something else, and you're asking me to do something else, so I am biased. So it should be screened, analyzed, given the opinion by the experts, not somebody else. Thank you. Thank you. In fact, that is exactly why we brought people like Professor Acharya, who is with us. As you heard him, he is our actually guardian in training us and teaching us in terms of how we should proceed when we are talking about making Ayush products accessible to the citizens in our country. So we are moving in that direction, and you will be very happy to see very soon Professor Acharya will bring out certain very good results, to us. I can see Tarili
from Guwahati. She's put a comment. Would you like to come in and say a few words, Tarini? Please unmute and come. Okay. Anybody else wants to come? Please raise your hand. There is a button there so that we can recognize you and request you to unmute and come one by one. मैं आना चाहता हूँ। Please, Sudeep ji. जी, हर तरह की बैन लगाना ही हर चीज का विकल्प नहीं है। जिस प्रकार से सरकार बैन लगाती जाती है, ये बैन केवल धन उगाही का साधन बनते हैं। इसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, इसको तार्किक बनाने की जरूरत है कि हम क्यों बैन कर रहे हैं। जहां भी बैन होता है उस क्षेत्र के अधिकारी पैसा कमाते हैं और वो चीज फिर भी चलती रहती है, दबे छुपे वो मिलती रहती है। तो मेरा ये कहना है कि इसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए और इसको रेस्ट्रिक्टेड वे में लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए बैन कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रकार का। और अभी एक मरकरी की बात आई थी कि मरकरी बैन करा गया, जबकि वो दवाइयों के लिए उपयोगी चीज है। तो उसको भी जो है रेगुलेटेड वे में इस्तेमाल होना चाहिए, जो जीवन रक्षक भी है। तो उन चीजों को जो है ध्यान में रखा जाए और रेगुलेशन हर चीज पर न लगाया जाए। थैंक यू। Thank you. Thank you. Merchant Saab. Merchant Saab. Yeah. For paucity of time, I'm not saying my pranams to all with the proper words and expressions. But within that 1 minute, sir, thank you very much, Professor Bijen Mishra ji and Uday Manna ji for this wonderful topic. Actually, जहां तक बैन का सवाल है, हमारे यहाँ कोई अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन नहीं है, because India, we can see at an international level, India is a dumping ground of many banned products which are banned in Europe or United States. People conveniently can dump here. So one is we have to look at the international instruments that are available. Many times there are wonderful documents and conventions or treaties and protocols adopted at the United Nations level. And to see if one country has decided to ban a particular product, what is the scientific reason or what is the purpose? In United States, there is no ban on owning arms. It's a gun culture. In India, it's very stringent process of getting a license and the justification. So India has come a long way from the license Raj. But still, as many of the wonderful speakers, eminent personalities have said, including our chief speaker, Shri Dr. Wajahat Habibullah ji, and many other friends who have spoken, they have shared with us that if there is a ban, then it should have a universal impact. Otherwise, like alcohol and like many other things, and people generally find some via media to violate the ban. So I feel we have to also look at the international instruments and see whether certain things can be made universal, because our interest is to ensure the health of the population, the well-being of the masses of the people, and a betterment of the society at large. तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस को हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ प्रपोजल्स भेजना चाहिए। जो चीज हमारे देश में हमें उपयोगी लगा है, फायदेमंद रहा है, लाभान्वित रहा है, उसको हम प्रोत्साहित करें, और जो चीज नुकसानदायक रहे और जो काम नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो ये है कि शासन में अगर भ्रष्टाचार है, why does a certain ban not have an effect? It means the system of governance itself is defective. The public servants who are responsible, if like in a traffic, if you violate a traffic rule and if the traffic police just pockets some money and lets you go, then what is the use of that rule? So our main objective is the welfare of the society, the betterment of the communities, and to ensure the constitutional provisions are upheld. So with these few words, I'm once again grateful to RJS Parivar and Positive Media for this Thank you very chance to much, speak. Thank you. For your inputs. Thanks a lot. As you heard, Wajahat ji, Kishan Parmar ji, Praful Bhai, and our friend Prakash Boswamiya ji, and everybody, expressed that कुछ भी करें नीति यदि आप लेते हैं, तो वो सबको लेकर जो समाज चाहता है
उसको करना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद क्या सही समझते हो आप उसको लागू करो। सबका राय लेकर और ऐसा लागू करो कि वो सामान्य हो, बायस नहीं हो। ये नहीं कि जैसे लोग उदाहरण दिए हैं कि जो वर्ल्ड में अवेलेबल है, जो उपभोक्ता ले सकते हैं ई सिगरेट्स, उसको आप नहीं अलाउ कर रहे हो इंडिया में लाने के लिए, क्योंकि आप समझ रहे हो वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि अभी आप लोग एक एक करके हम अब माइक उदय मन्ना जी को देना चाहेंगे। उदय मन्ना जी, आप काइंडली इसको अब समाप्त करिए। अब कोई यदि बोलना चाहेंगे आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए। हम देख रहे हैं रेणु जी आना चाह रही है। रेणु जी आप आइए, बट उदय मन्ना जी को हम पहले आग्रह करेंगे कि आप प्लीज आइए। उदय मन्ना जी। धन्यवाद सर, प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी, आरजेएस एडवाइजर और कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर। आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये संचालन किया और जिस तरह से माननीय अतिथि यहाँ पर आए, 101% सभी लोग उपस्थित रहे और बहुत ही अच्छी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए इस मंच का उपयोग किया गया है और बहुत ही सारगर्भित तरीके से सब लोगों ने जो सकारात्मक बातें कही हैं। बिजन मिश्रा जी, आपका कमाल है, आपने इस तरह से कंडक्ट किया इस कार्यक्रम को और सभी लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े। रेणु जी का नाम आपने लिया है, तो अगर कोई और भी लोग हैं, एक दो क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है और उसके बाद हम लोग इस समापन की ओर बढ़ेंगे। रेणु जी। हाँ जी, वंदे मातरम। सर, वंदे ये मातरम। जो प्लास्टिक बैन की बात है, तो उसके तो मैं बहुत ही खिलाफ हूँ। मैं मार्केट में जाती हूँ तो जैसे ये शॉपकीपर सब्जी वाले हैं, सब पॉलीथीन में देते, तो मैं बोलती हूँ नहीं मेरे को नहीं चाहिए, और तुम क्यों बेचते हो, कागज का लिफाफा लो। तो वो कहते नहीं लेंगे तो ये मेरी मजबूरी है, और कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो ये सरकार उसकी फैक्ट्री बंद करे। मैं ये चाहती हूँ कि ना पॉलीथीन बनेगी और ना जो है कोई शॉपकीपर खरीदेंगे। छोटे छोटे दुकानदारों से जो है इन लोग रेट डाल के धन उगाही करते हैं और उसके बाद फिर सब खत्म। तो इसका समस्या का समाधान कैसे होगा कि पब्लिक भी जागरूक हो, वो ना ले, और सरकार तो फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। जी, कोई पैनलिस्ट इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो स्वागत है। प्लास्टिक की बात पहले भी उठी थी कि मतलब प्लास्टिक का उत्पादन बैन नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक के उपयोग को बैन किया जाता है, तो फैक्ट्री से उत्पादन ही नहीं हो, ये रेणु जी ने सवाल उठाया है। हमारे पैनलिस्ट अगर इस पर कुछ बताना चाहें, मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित हैं। यहाँ प्रकाश बोसामई जी हाथ इशारा किया है। जी जी, प्रकाश जी स्वागत है। जो मैडम ने बताया उसकी बात सही है। तो कौन लगा? हमारे जो कस्टमर है या ग्राहक है उसे भी इसलिए गोया कि मेरे कोई प्लास्टिक नहीं चाहिए, मगर क्या है कि सब लोग ऐसे पहले से एक हैबिट हो गई है सबको कि वहां से मिलेगा, घर से ऐसे ही निकल जाते हैं झोली लेने बिना। अपने कपड़े का कोई भी झोली लेके साथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ये रेणु जी की बात को मैं सहमत हूँ कि हमें जागृति लानी चाहिए, हर एक बाबत में ग्राहक को भी जागृति लानी चाहिए, जैसे हिसाब से हम आगे और किसी को भी बोल सकते हैं। खुद सिगरेट पिएंगे तो दूसरे को कैसे बोलेंगे कि आप सिगरेट मत पियो। इसलिए हमारे से ही शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और रेणु जी की बात को मैं एक सहमत हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है और इस पर हम लोगों ने वेबिनार भी किया था जागरूक करने के लिए कि थैला लेकर ही आप घर से निकलें, तो इसकी कोशिश हम सभी को करनी होगी। परमार साहब कुछ कहना चाहते हैं? परमार देखिए, साहब। कोई भी प्रोडक्शन हो उसकी अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। अभी जो सुझाव आया है कि फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, सरकार का क्लियर नियम है कि 50 mm की जो प्लास्टिक है वो नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि 50 mm से ज्यादा की प्लास्टिक पैकिंग में काम आती है। तो अगर 50 mm से कम की प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए तो जो मैडम ने कहा और साथियों ने कहा उस पर कुछ अमल हो सकता है। तो लगभग लोग फैक्ट्रियों को 50 mm की प्लास्टिक उत्पादन को बैन, फैक्ट्रियों में उत्पादन न करने की तरफ इशारा कर रहे हैं।
सभी लोग इस पर तैयार हैं और अब समापन करने की विकल्प लाना बहुत जरूरी है उदय मन्ना जी। जैसे आप यदि बैन लाते हो तो जिन लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनका विस्थापित ना हो और उनको कंफर्टेबली एक रिहैबिलिटेशन किया जा सके, उस पे भी एक नीति आनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द बैन। जी बिल्कुल होता है। बिल्कुल विकल्प कहीं कहीं मॉल में प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा साहब देखा जाता है कि किसी किसी मॉल में वो देते हैं सब्स्टिट्यूट प्लास्टिक का, और कुछ पैसे भी 2-4 पैसे भी उसके लिए लिए जाते हैं और ग्राहक खुशी खुशी दे देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल चीजों का उपयोग करने के लिए भी एक ये इशारा है, कदम है कि ऐसे विकल्प जो हैं वो हम लोग दे सकते हैं, अपना सकते हैं। और मेरे ख्याल से समय अब इजाजत नहीं दे रहा है कि हम लोग और बातों को लें। यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुमन कुमारी जी को, जो अभिप्सा पटना बिहार की सचिव हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसलर हैं। सुमन कुमारी जी, हर रविवार आरजेएस वेबिनार है। धन्यवाद सुमन कुमारी जी, स्वागत। जी धन्यवाद सर, आपने मुझे मंच का कार्यभार प्रदान किया है। मैं सर्वप्रथम आप अपने आरजेएस के संयोजक श्री उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद से गहन मुद्दों पर वेबिनार का आयोजन करते हैं और हम सभी प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से मिलने और विषयांतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मैं दीप माथुर सर, जो कि आरजेएस ऑब्जर्वर भी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। आज के इस वेबिनार में स्नेह मिलन सत्र भी रखा गया था। स्नेह मिलन सत्र के सभी प्रतिभागियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन सभी को आरजेएस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम एड्रेस के लिए प्रफुल्ल सेठ जी को भी आरजेएस परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हमारे अध्यक्षीय भाषण के लिए हबीबुल्ला सर, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं और साथ ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चेयरमैन रह चुके हैं, इनका भी हम सभी आरजेएस परिवार के भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमने रवि नारायण आचार्य सर जी को भी सुना, इनको भी हमारा परिवार तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता है। इनका तो नाम ही काफी है, इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे और इनके द्वारा सुनी गई बातों का सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही लाभ भी उठाया है। प्रकाश भाई बोसानिया जी, जो कि अतिथि वक्ता के रूप में जिन्होंने अपने विचार, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबों के बीच रखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है ज्ञापन करती हूँ। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं भावनगर ग्राहक सुरक्षा मंडल के। मैं अब प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, जो कि आज के वेबिनार के चीफ स्पीकर और मॉडरेटर हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आज के वेबिनार का संचालन किया। और आप जो है आरजेएस एडवाइजर भी हैं, साथ ही फाउंडर डायरेक्टर कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के भी हैं। आपने जिस बखूबी के साथ सभी आज के वेबिनार में जो समा बांध के रखी, वो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इतना मतलब 2-3 घंटे का समय आप सभी विशेषज्ञों को हम सुनते रहें, लेकिन मन तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ समय की पाबंदी है, जिसकी वजह से इन शब्दों के साथ तहे दिल से सभी प्रतिभागियों को, जिन्होंने प्रश्न भी पूछा, उन्होंने भी काफी अच्छा प्रश्न पूछा,
जिससे हमें यह समझ आ रहा है कि सभी ने वेबिनार को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को तहे दिल से आरजेएस परिवार विश्व एक घर की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक की तरफ से और तमाम आरजेएस फैमिली जो 25 राज्यों की है और जो हमारे प्रभारी हैं पटना, जमशेदपुर, दिल्ली, उन सभी लोगों की तरफ से सभी अतिथियों को मैं बहुत हृदय से मैं बहुत आभारी हूं और रहूंगा भी कि 101% जो ये उपस्थिति रही है, ये देश में एक संदेश जाता है कि हम लोग प्रतिबंध जो जिससे जनता प्रभावित होती है, ऐसे मुद्दे को लेकर हम लोग सामने आए। और हर रविवार आरजेएस वेबिनार आजादी की अमृत गाथा की ये स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और 51 जो आरजेएस वेबिनार है अगले रविवार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत ये 75 श्रृंखलाबद्ध भारत महोत्सव में जन भागीदारी आरजेएस कर रहा है, जो देश की सबसे लंबी बड़ी जन भागीदारी है। आरजेएस, राम जानकी संस्थान और दिल्ली और नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल की संस्था तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, सचिव सोमेन कोले, 6.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत ये जन भागीदारी जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू की गई और 50 कार्यक्रम आज हो गए हैं। अब आगे और 25 कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अगले रविवार 20 फरवरी को आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। अगले 20 रविवार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार 10:30 बजे से आरजेएस फैमिली का स्नेह मिलन सत्र होता है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाती है और 11 बजे से हम लोग किसी न किसी एक सारगर्भित विषय और जनता के उपयोगी विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आज प्रभावी शासन का विकल्प क्या प्रतिबंध है, प्रतिबंध अगर लगना है तो बहुत सारी बातें आई हैं विशेषज्ञों को, वो मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगी कि आज किस किस विषय प्रतिबंध को लेकर किन किन आयामों की चर्चा की गई है। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी का बहुत बहुत आरजेएस फैमिली हृदय से आभारी है कि जिस तरह से आपने बांध के रखा है आज के वेबिनार में, जिस तरह से सफल संचालन किया है, इसके लिए भी हम लोग आपके आभारी रहेंगे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को और आरजेएस ऑब्जर्वर जिन्होंने की ओपनिंग रिमार्क्स दिया और आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बताया, उनका भी हम आभारी हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत मुबारक। एक और घोषणा भी एपिसोड लगे हाथ जी अब लगे हाथ एक और इंपॉर्टेंट घोषणा कर देते हैं। 20 फरवरी के अनाउंसमेंट के बाद आज ही 27 फरवरी की भी अनाउंसमेंट कर दी जा रही है। हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही खुश होगा कि 91 वर्षीय डॉक्टर कर्ण सिंह, जो कि भारत के इतने महान विद्वान हैं, इन डॉक्टर कर्ण सिंह को सुनने का मौका आरजेएस फैमिली को मिलेगा। और सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि उस वेबिनार को जरूर सुने, क्योंकि कंफर्मेशन आ गया है और वो AK मर्चेंट साहब के सानिध्य में उसको किया जा रहा है। डॉक्टर कर्ण सिंह जी मुख्य अतिथि होंगे। जय हिंद, जय भारत। संपन्न होता है स्वर्ण जयंती आरजेएस की ये अमृत गाथा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आचार्य, थैंक यू सर। वजाहिद हबीबुल्ला जी, प्रफुल्ल भाई, प्रकाश भाई, किशन परमार जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप माथुर जी, फिर से मिलेंगे, हर रविवार को मिलेंगे 11 बजे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।